ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کار سے میں نے جلد ہی چھٹکارا پا لیا اور گیانی جی کی طرف سے ممکنہ تعاقب کے پیش نظر ایک لمبی مٹر گشت کے بعد اپنے ٹھکانے تک جا پہنچا، جہاں کرنل صاحب کا خصوصی پیغام میرا منتظر تھا: رابطہ قائم کرو۔ میرا ایک ساتھی وہاں سے میرے ساتھ روانہ ہوا اور ہم ایک دور دراز اور کسی حد تک غیر آباد مقام پر چلے گئے۔ یہ ہمارا ایک طرح سے یہاں کا جاسوسی ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں ایک طاقتور ٹرانسمیٹر کے ذریعے چند منٹ کے بعد ہی میرا رابطہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے بحال ہو گیا۔ ونڈرفل! کرنل صاحب نے میری گیانی آتما سنگھ والی اچیومنٹ پر مجھے بے اختیار داد دی۔ انہوں نے بتایا کہ آج رات ہمارے دوست پانیوں میں سے ابھریں گے، اور نیک تمنائیں دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ جس تیز رفتاری سے حالات بدل رہے تھے اس میں ہم انتظار کرو کی عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں ہر قدم فوری اور تیز رفتاری سے اٹھانا تھا، کیونکہ پہلے ہی بہت سا پانی ہمارے سروں سے گزر چکا تھا۔ عثمان نے صرف ایک دن ان لوگوں کے ساتھ گزار کر جہاں بہت سے خطرات مول لیے تھے، وہاں کم از کم ان کا ایک خصوصی مرکز کا پتہ بھی لگا لیا تھا، اور یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اب ہمارا پہلا وار اسی مرکز پر ہونا تھا جہاں زیادہ تر مشرقی پاکستان سے آنے والے بھگوڑے تخریب کاروں کے لیڈر قیام کرتے تھے، اور جہاں را کے بڑے بڑے ذہن ان کے منہ میں نت نئے نعرے اور ان کے شرارتی ذہنوں میں تباہ کاریوں کے رنگا رنگ منصوبے ڈال کر انہیں مشرقی پاکستان میں دھکیلتے تھے۔ اس جزیرہ نما جگہ کا نام لکشمی کانتا پور تھا۔ لکشمی کانتا پور ایک تکون نما جزیرے کی طرح سمندر کے پیٹ سے نمودار ہو کر خشکی کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے۔ اس کے ایک سمت پورٹ اور دوسری طرف کچھ اوپر جا کر ڈائمنڈ ہاربر ہے۔ لکشمی کانتا پور کو کوئی فوجی حیثیت تو حاصل نہیں تھی، اور یوں بھی یہ انٹیلیجنس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا کام خفیہ ہی کرتے ہیں اور کبھی بھی کارروائی کے لیے شور شرابے سے گریز کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں نہ تو کوئی فوجی یونٹ ڈپلوائے کیا گیا تھا اور نہ ہی را کے اس مرکز کے گرد کوئی حفاظتی جال بنایا گیا تھا، بس وہی حفاظت کے عام بندوبست موجود تھے۔ عثمان نے اس ہیڈ کوارٹر کی یاترا اگلے ہی روز کی تھی اور یہیں سے نکل کر مجھے ملنے آیا تھا۔ امت سرکار اور اس کے ساتھی کی موت کے بعد یہاں کے کرتا دھرتا لوگوں کو اس بات کا علم تو ہو گیا تھا کہ ان کا یہ مرکز ہماری نظروں میں آ چکا ہے، لیکن ایک تو یوں بھی فی زمانہ اپنے کسی اہم مرکز کا دشمن کی نظروں میں آ جانا کچھ ایسی عجیب بات نہیں سمجھی جاتی، اور دوسری بات یہ کہ مشرقی پاکستان میں ہماری نیوی کی پتلی حالت کے پیش نظر یہ بات تو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ہم کبھی ان پر حملہ کرنے کا تصور بھی کر سکتے تھے۔ عثمان سے میں نے اس کے ہوٹل کے کمرے میں ملاقات کی تھی۔ وہاں سے ہم نے ایک مرتبہ پھر را کے اس مرکز کے اندرونی نظام کا جائزہ لیا، اور تھوڑی ہی دیر میں تمام جزیات میرے ذہن میں منتقل ہو گئی۔ اب ہم دونوں ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ شام تک ہم نے 2 مرتبہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا۔ میرا پلان سمجھنے میں انہیں ذرا بھی دشواری پیش نہ آئی، اور انہوں نے سیدھا سادہ جواب دیا: مشن جاری رکھیں، آنے والے نئے دوستوں کو تمہاری پہچان کرا دی گئی ہے۔ جیسے ہی افق پر مغربی سمت میں سورج کا سفر اختتامی لمحوں کو پہنچا، میں اور عثمان اپنے ٹھکانے سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ ہم نے ماہی گیروں کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ عام بسوں کے ذریعے سفر کر کے ہم ایک مخصوص مقام پر پہنچے جہاں ایک مچھلیاں پکڑنے والی لانچ ہماری منتظر تھی، جس میں ہمارے ساتھی ڈھیر ساری مچھلیوں سمیت ہمارے منتظر تھے۔ یہ مچھلیاں انہوں نے صبح سے اب تک شکار کی تھی۔ اسی لانچ کے ایک خفیہ خانے میں طاقتور ڈائنامائٹ اور ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا، اس کے علاوہ کچھ ہلکا پھلکا لیکن خاصا کارآمد اسلحہ۔ لانچ پر موجود ماہی گیروں کو دیکھ کر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ لوگ کوئی خطرناک ارادہ بھی رکھتے ہوں گے۔ وہاں اکا دکا لانچیں دور دور گھومتی نظر آ رہی تھیں۔ اب سبھی لوگ تھک ہار کر واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ ہمیں کسی نے لانچ میں سوار ہوتے نہ دیکھا۔ پھر انجن تو میں نے سنبھال لیا
और वो लोग इधर उधर बिखर कर बैठ रहे। हम दिल ही दिल में सलामती की दुआएं मांगते अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। दूर दूर तक किसी स्टीमर या कश्ती का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हमारा सफर साहिली इलाके के साथ साथ जारी था कि साहिली इलाके के एक कटाव में छुपी नेवल पुलिस की एक तेज रफ्तार गन बोट अचानक मुंह फाड़े हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसे देखते ही मेरे तीनों साथियों ने अगले इक़दाम के लिए मेरी जानिब देखा। मैंने उन्हें पुरसुकून रहने की तलकीन की और स्टीयरिंग के करीब रखा वो छोटा सा खिलौना अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया जो किसी भी लम्हे फट कर कयामत ढा सकता था, उन पर भी और हम पर भी। हॉल्ट, रुक जाओ। अंग्रेजी और बंगाली दोनों जबानों में गनबोट के डेक पर खड़े एक ऑफिसर ने मेगाफोन में चिल्लाते हुए कहा। मैंने इंजन बंद कर दिया। गनबोट हमारे करीब झाग उड़ाती आकर ठहर गई। लहरों के दोष पर डगमगाती लॉन्च में छलांगे लगाकर 3 सिपाही और एक उनका अफसर दाखिल हो गए। बाकी राइफलें ताने वहीं खड़े रहे। कौन हो, किधर जाओगे? उसी अफसर ने झाड़ पिलाई। हम मछेरे हैं, हमारे एक साथी ने उसे जवाब दिया। अव्वल तो उसी से उसकी तसल्ली हो गई, लेकिन फिर भी उसने तमाम हुज्जत के लिए अपने साथियों को लॉन्च टटोलने का हुक्म दिया और जब कुछ हाथ न आया तो 2-4 मछलियां उठाकर चलते बने। इतनी बड़ी मुश्किल से इतनी जल्दी निजात मिल जाने पर हम सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। लक्ष्मीकांतापुर के नजदीक हम साहिली इलाके पर उतर गए। अब हमें करीबन 1-1.5 मील पैदल सफर करके मंजिल मकसूद तक पहुंचना था। हमारे साथियों ने लॉन्च वहीं एक तरफ ओट में खड़ी कर दी। उनमें से एक लाइट मशीन गन के साथ लॉन्च पर मोर्चा जमा कर बैठ गया, जबकि दूसरे ने हमारे वापसी के रास्ते में एक महफूज जगह पर मोर्चा कायम किया। फी अमानिल्लाह दोस्तों, दोनों ने हमें एक एक बैग सौंपते हुए कहा। फी अमानिल्लाह। हमने भी उन्हें खुदा के हवाले किया और सुए मंजिल गामजन हुए। एक गंभीर सन्नाटा हर तरफ तारी था। दूर दूर तक किसी जीहोश का नामो निशान न था। वहां हम थे या खुदा की जात, जिसने एक गैर मुतजलजल एतकाद हमारे सीनों में भर दिया था, और यही भरोसा था जो अंधेरों को रोशनी दिखाता हुआ हमारी रहनुमाई कर रहा था। हमने रॉ के मरकज तक पहुंचने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया था वो अगरचे कुछ लंबा और चक्करदार था, लेकिन महफूज था। कोई सड़क करीब से न गुजरती थी जिस पर किसी की आमदोरफ्त होती। बस फेकड़ की लंबी लंबी झाड़ियां थीं, बेआबोगयाह पथरीली पहाड़ियां और झुलसी हुई जमीन जिसमें से हमारा हर कदम एक भरपूर एतमाद और मुकम्मल एहतियात से अपना रास्ता बना रहा था। और आखिर चलते चलते हमें आबादी से अलग थलग बनी वो इमारत दिखाई देने लगी जिसके दोनों अतराफ जर्द बल्बों की बीमार रोशनी आंखें झपक रही थी। मैंने एक टीले की ओट में बैठकर वो दूरबीन निकाली जिसके शीशे रात के अंधेरों में भी सब कुछ देख लेने और दिखा देने की शक्त रखते थे। इमारत के इर्द गिर्द एक पुरहौल सन्नाटा तारी था। सिर्फ ऊपर की मंजिल के बरामदे में घूमता फिरता एक संतरी था या फिर एक कोने से उठती सर्च लाइट की रोशनी। उसके अलावा कुछ दिखाई न दिया। अंदर जाने क्या तैयारियां थीं उनका हमें इल्म नहीं था। हर खास नौयत की इमारत की तरह उसके गिर्द भी बड़ी बड़ी लांबी लांबी जंगली घास सर उठाए खड़ी थी, या फिर वो नाला था जिसमें इमारत की गंदगी बह रही थी। हमने उसी जंगली घास में से गुजर कर वहां तक पहुंचना था। हमने माही गिरों की तरह लुंगियां बांध रखी थीं और जिस्म पर आधी आधी आस्तीनों की कमीजें पहन रखी थीं, या फिर हमारी पीठ पर मछलियां उठाने वाले वो तीलियों से बने बड़े बड़े थैले थे जिनमें हमने बैग छुपा रखे थे। अभी घास में बमुश्किल चंद कदम ही चले थे कि टांगों में खराशें पड़ने लगी, और फिर इन खराशों में इस तरह एक आग सी लगी जैसे किसी ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। अब मुझे बखूबी समझ आ गया कि इस तरफ की हिफाजत से वो लोग बेनियाज क्यों थे। वाकई यहाँ किसी के घुसने का तसव्वुर भी मुहाल था। मेरे लिए ये कोई नया तजुर्बा नहीं था। ऐसी कई अजियतें मैंने अपनी तरबियत में सह ली थीं, लेकिन उस्मान को जिस कर्ब और तकलीफ का सामना था वो मैं बखूबी महसूस कर रहा था। लेकिन क्या मजाल है जो उसने उफ तक की हो। वो तरबियत के ऐन मुताबिक मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। इमारत की दीवार के नीचे पहुंचकर हम रुक कर अपने काम में जुट गए। बैग खुले तो उनमें से अजीब अजीब चीजें बरामद होने लगीं। ये मुख्तलिफ किस्म के टाइम बम थे जो बेजरर खिलौनों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद थे। हम हर खिलौने से मुंसलिक घड़ी पर वक्त का तयन करते और उसे हौले से दीवार के अंदर लुढ़का देते। अब हमारा रुख इमारत के बाहर के दरवाजों की समत था।
हर दरवाजे से एक सड़क अंदर जाती थी और उस सड़क के नजदीक भटकना ही मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। वो इतने बेखबर नहीं थे कि यहाँ भी उनकी नजर न रही हो। मैंने अंधेरे की आड़ में कोहनियों के बल रेंगते हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये लोहे का स्याह रंग का बहुत बड़ा फाटक था जो अंदर से बंद था। फाटक के साथ साथ दरख्तों का एक तवील सिलसिला अंदर फैलता चला गया था और अंदर से साए साए के सिवा कुछ सुनाई न देता था। यहाँ ऐसा ही सुकूत तारी था जैसे समंदर पर बड़ा तूफान आने से पहले तारी हुआ करता है। मैंने फुर्ती से डेटोनेटर लगाए और एक तार से मुंसलिक करके तार को वहां तक ले आया जहां स्टेन गन थामे उस्मान मुझ पर नजरें जमाए बैठा था। उसने फुर्ती से तार का सिरा अपने करीब रखी बैटरी से मुंसलिक कर दिया। मैंने घड़ी की सुइयों पर नजर दौड़ाई। हमारे दूसरे दोस्तों की आमद करीब थी। उस्मान को वहीं बिठाकर मैं दोबारा उसी लंबी लंबी घास का अजाब झेलता तेज रफ्तारी से साहिल की तरफ बढ़ गया। साहिल पर मैं बेचैनी से समंदर पर नजरें जमाए बैठा था जब मुझे दूर लहरों के दोष पर एक गन बोट हिचकोले लेती नजर आई। साहिल नजदीक होने की वजह से उसके इंजन बंद थे। 3 बार उस तरफ से टॉर्च रोशन हुई जिसके जवाब में मैंने भी वही अमल वक्फे वक्फे से दोहराया और उसके साथ ही मुझे कुछ साए समंदर में उतरते नजर आए जो बड़ी तेज रफ्तारी से तैरते हुए इसी समत आ रहे थे। एक रबड़ की कश्ती उन्होंने अपने हल्के में ले रखी थी जो उनके साथ ही साथ आगे बढ़ रही थी। साहिल के करीब आकर वो रुक गए और किसी मुमकिना धोखे के पेश नजर उनमें से एक जवान आगे बढ़ा। साहिल पर आकर मैंने उसे अपने लिबास से पिस्तौल निकालते देखा। फिर वो कदम ब कदम आगे बढ़ा। करीब पहुंचने पर मैं ओट से निकलकर उसके सामने आ गया। हमारे दरमियान चंद अल्फाज का तबादला हुआ और उसने मुतमईन होने के बाद अपने साथियों को बाजू लहरा लहरा कर इशारे किए तो वो सब भी तेजी से साहिल पर आ गए। रबड़ की कश्ती खींचकर वो साहिल पर ही ले आए थे। उसमें रॉकेट लॉन्चर थे। बमुश्किल 2 मिनट बाद ही वो लोग तैयार थे और अब उनकी कमान अमलन मेरे हाथ में थी। मैंने बड़ी फुर्ती से बारी बारी तमाम जवानों को चेक किया और उन्हें लेकर आगे बढ़ गया। उस्मान तक हम लोग करीबन 15 मिनट में ही पहुंच गए। खैरियत गुजरी कि मेरे पीछे वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई थी और उस्मान भी जूं का तू मौजूद था। हमारे नए साथी जो तादाद में 10 थे चंद मिनट में ही इमारत के गिर्द इस तरह पोजीशन ले चुके थे कि वहां के मकीनों के फरार की कोई राह बाकी न रही थी। हम सब लोग ट्रिगरों पर उंगलियां रखे एक खास इशारे के मुंतजिर थे। ये इंतजार बड़ा आसाब शिकन था। खुदा खुदा करके वो मुबारक साथ भी आ गई जब दीवारों के साथ फेंके गए टाइम बॉम्ब्स ने फटना शुरू किया। मैंने हुक्म दिया, चार्ज। उस्मान का हाथ लीवर पर दबा और दरवाजे के परखचे उड़ गए। जवान तो उसी एक लम्हे का इंतजार कर रहे थे। नाराए तकबीर पुकारते हुए अंदर कूद गए। हमने इमारत के एक एक कमरे में घुसकर अपने अरमान निकाले। हम लोग इमारत के सामने वाले और पिछले हिस्से पर हमलावर हुए थे जो एक तरह से अलग ब्लॉक की शक्ल इख्तियार किए हुए थे। रॉकेट लॉन्चर से फायर आने लगे और ये ऑपरेशन जल्द ही मुकम्मल हो गया। जब हम 10 मिनट के बाद वापस पलट रहे थे उस वक्त तक रॉ का मरकज अपने तमाम तर मंसूबों समेत खसो खाशाक के ढेर में तब्दील हो चुका था। लेकिन इससे कबल कि हम लोग दुश्मन की लाशों का शुमार करने बैठते हमें ये फिक्र सताने लगी कि जिन धमाकों से लक्ष्मी कांतापुर का जजीरा लरज रहा है जाने कितनी देर में उसकी गूंज भारतीय फौज को सुनाई दे। वापसी का सफर हमने 2 ग्रुपों की शक्ल में करना था। एक ग्रुप तो नेवल कमांडोज पर मुश्तमिल था और दूसरे में उस्मान और मैं शामिल थे। वो लोग तो साहिल की उस समत बढ़ गए जहां एक तेज रफ्तार जंगी गन बोट उनकी मुंतजिर थी, जबकि हमारा रुख उस तरफ था जहां माही गिरी की लॉन्च पर बैठा हमारा साथी बेचैनी से हमारी राह तक रहा था। अभी हम दोनों ग्रुप उस मकाम तक ही पहुंचे थे जहां से हमें अपनी अपनी मंजिल की तरफ अलहदा होना था कि अचानक खिलाफ तवक्को फौजी व्हीकल्स की आवाज ने हमारे कदम पकड़ लिए। दूसरे ही लम्हे तमाम जवान अपने हथियार संभाल कर मुख्तलिफ टेकरियों की ओट में मोर्चाबंद हो गए। शायद यहाँ कोई यूनिट डिप्लॉय थी जो हंगामी पैगाम मिलने पर उन लोगों की मदद को आ रही थी। अंधेरे में उन्होंने अपनी हेडलाइट्स बुझा रखी थी। सिर्फ अगली छोटी बत्तियां जिन पर पहले ही रंग किया गया था रोशन थी। वो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर एक जीप और एक ट्रक के साथ हिचकोले खाते हमारी तरफ बढ़ रहे थे। आगे आगे एक जीप थी जिसमें खड़े एक जवान ने आंखों से दूरबीन लगा रखी थी। बाकी लोग मुस्तैद बैठे थे
और उनके पीछे ट्रक में जिस पर मशीन गन नस्ब थी उनके दूसरे साथी हंगामी मदद के लिए आ रहे थे। मेरी कोशिश यही थी कि हंगामे से गुरेज किया जाए और किसी भी तरह हम लोग उनकी आंखों में धूल झोंक कर वहां से निकल जाएं। लेकिन वो भी खासे होशियार नजर आ रहे थे। हमसे थोड़े फासले पर ही वो रुक गए। ट्रक से भारतीय फौज छलांगे लगाकर नीचे उतरने लगी। जीप में खड़ा उनका ऑफिसर उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पोजीशन अलॉट कर रहा था। फिर उन्होंने बड़े मुनज्जम अंदाज से जीप को 3 अतराफ से घेरे में लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने बिल्कुल वही अंदाज इख्तियार किया था जैसा उमूमन आर्टिलरी एडवांस के वक्त अपनाती है। जीप को एक तरह से टैंक की हैसियत हासिल थी जिसकी आड़ में वो आगे बढ़ रहे थे। ट्रक में लगी मशीन गन के पीछे एक लोहे का टोप नजर आ रहा था। उसे शायद उन लोगों ने कवरिंग फायर के लिए यहाँ खड़ा किया था। एडवांस करने वाले सिपाहियों के पास आम नौयत की ऑटोमेटिक राइफलें ही थीं। ये कोई बाकायदा तैयारी से आने वाली फौज तो थी नहीं। वो लोग तो अचानक हंगामी पैगाम मिलने पर हर अव्वल इमदादी दस्ते की हैसियत से आ गए थे। हमें उम्मीद थी कि असल फौज उनके पीछे आ रही होगी। अब सिवाय मुकाबले के और चारा नहीं था। मेरे साथ नेवल कमांडोज का ग्रुप कमांडर लेटा हुआ था। मेरा इशारा पाते ही वो ट्रक की तरफ रेंग गया। बाकी जवानों को मैंने ऐसी पोजीशन में बिठा दिया कि अब एडवांस करने पर कदम बकदम उनके नरगे में फंसने के लिए उनके नजदीक से नजदीक तर होते जा रहे थे। मैं खुद अंदाजे के मुताबिक उन सरकंडों के झुंड में जा घुसा जहां से जीप को गुजरना था। ये सारी कंपनी बमुश्किल 15-20 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। मेरे साथ ही मेरे सिग्नल के मुंतजिर थे। मैंने ग्रेनेड से पिन निकालकर उसे फेंकने की पोजीशन में तैयार कर लिया। जैसे ही बदकिस्मत जीप मेरी रेंज में आई, मैंने अल्लाह को याद किया और पहला ग्रेनेड उस पर उछाल दिया। फिर यक के बाद दीगरे 2 और ग्रेनेड भी बरखचे उड़ाती जीप पर उछाले, जो बहुत बड़े गुब्बारे की तरह फटकर अपने सवारों समेत मुंतशिर हो चुकी थी। यही रद्द अमल दूसरी तरफ उस ट्रक के साथ ग्रुप कमांडर ने दोहराया। उसके साथ ही हमारे जवान कहरमान देवता बनकर उन पर आग उगलने लगे। महज 3 या 4 मिनट की तेज तरीन कार्रवाई ने उनका नामो निशान मिटा दिया। अब वहां झुलसी हुई जमीन थी, आग में धड़ाधड़ चलते ट्रक और जीप के ढांचे, या फिर कहीं औंधे कहीं सीधे मुंह पड़े भारतीय सिपाहियों की हैरतज़दा लाशें। उन बेचारों को बमुश्किल ही चंद गोलियां फायर करने की मोहलत नसीब हुई थी। मेरे दोस्त मेरे गिर्द जमा थे और अगले हुक्म के मुंतजिर थे। खुदा हाफिज दोस्तों। मैंने उनके ग्रुप कमांडर की पीठ पर थपकी दी और उन्हें आगे बढ़ा दिया। जाते वक्त उन्हें सिर्फ हम दोनों की फिक्र दामनगीर थी, क्योंकि हम दुश्मन के ऐन दरमियान से गुजर कर जा रहे थे, जबकि वो समंदर की पनाह में किसी हद तक महफूज थे। रात के वक्त सिवाय खास नौयत के जहाज़ों के और कोई जहाज उन्हें खोजने से कासिर थे, और जब तक दुश्मन की नेवी के देव हैकल जहाज उनकी खबर लेने को आते, वो अपनी तेज रफ्तार हल्की फुल्की गन बोट में महफूज पानियों तक पहुंच जाते। हमारे देखते ही देखते वो अंधेरे का हिस्सा बनकर गायब हो गए। अब मैं और उस्मान अपनी लॉन्च की तरफ जा रहे थे। हमारे पास 2 स्टेन गन्ने या फिर कुछ हैंड ग्रेनेड और एक आध धुआं पैदा करने वाला बम था। दोस्तों से अलहदगी के वक्त ये बात मेरे जहन में थी कि हम बुरी तरह से घेरे में आ चुके हैं और लॉन्च तक पहुंच जाना कोई इतना आसान नहीं था। दुश्मन इस इलाके की एक एक इंच जमीन सूंघता फिर रहा था। उस्मान को मैंने कुछ मखसूस दाव बताकर अपने ताक़ुब में लगा लिया था और खुद उसके आगे आगे चल रहा था। हमारे दरमियान कुछ फासला बहरहाल मौजूद था। वापसी के लिए हमने पहले से मुकर्रर करदा रास्ता अपनाया था, क्योंकि इस रास्ते को मद्देनजर रखकर हमने अपनी हिकमत अमली तरतीब दी थी, जिस पर हमारे कामयाबी से फरार का इन्हिसार था। हमारा एक जांबाज भी इन्हीं रास्तों के आसपास कहीं मौजूद हमारी निगरानी कर रहा था। उसने आखिरी दम तक हमसे पोशीदा रहकर हमारी हिफाजत के फराइज अंजाम देने थे। ये एक तरह से हमारा पहला दिफाई कला था जिसमें हमें पनाह मिलती, और आखिरी दिफाई हिसार था। लॉन्च पर लगी हुई मशीन गन जिसके गिर्द हमारा दूसरा मुस्तैद साथी चश्मे बराह था, धमाकों की आवाजें यकीनन उन्होंने भी सुन ली होंगी, और उसके बाद से उन पर क्या गुजरी होगी उसका अंदाजा कुछ वही दीवाने लगा सकते हैं जिन्होंने इस कारज़ारे इश्क में कदम रखा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔